So we were solving wave equation on a circle, and we arrived at this formula in previous lecture, uh, that is known as Poisson formula. H of phi a square minus 2ar cos of theta minus phi plus r square, then d phi upon 2 pi. So this single formula is that replaced three formulas: calculation of u and calculation of Fourier coefficients. So that combine three formulas. तीन कौन से थे? ये वाले an, bn and u. So this formula, so we can, this formula can be written in more geometric way. So we have a circle, take a point x inside, which has coordinate r and theta, and take a fixed point on boundary. So this is a, so this point is a phi. That can be anywhere. So we can express Poisson formula in more geometric way. So we write x equals to x, मतलब x symbolic है, x is xy actually. You can write this bold x. Okay, so which has polar coordinate with polar coordinates r and theta. So we can also think that this is a vector from origin to the point xy, and let x dash be a point on the boundary of circle with polar coordinates a and phi. Okay, so with usual notation you can write r equals to mod x, length of x, and a equals to length of, so this is r, length of x dash, so this is a triangle with three sides. You can write here the origin and the points x and x dash form a triangle with sides r equals to mod of x, a equals to this distance a, length of x dash, and third side is mod x minus x dash, this one, this third side joining x and x dash. So by the law of cosine, so this angle will be
this angle will be theta minus phi, this one. And by law of cosine you can write जो एंगल के अपोजिट साइड है उसका स्केयर इक्वल्स टू जो साइड वाली साइड्स हैं ए स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 2 AR cos थीटा माइनस फाई. ओके, एंगल के जो फ्रंट वाली साइड है इसका लेंथ का स्केयर जो दोनों साइड्स हैं आर स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2 AR cos जो इनके बीच का एंगल है थीटा माइनस फाई. This is usual law of cosines. And you can also write जो circumference है, circumference ये अपने कैलकुलस में पढ़ा होगा ds इक्वल्स टू a d phi, आर्क लेंथ और एंगल का रिलेशन. ds नहीं लिख रहा मैं क्योंकि पॉइंट को मैंने x डैश कहा, तो आई एम राइटिंग ds डैश इक्वल्स टू a of d phi. Therefore you can write Poisson formula u r theta, उसको आप ये भी लिख सकते हो u x बोल्ड लिखना है ये थोड़ा सा. So a square minus r square, so a square minus mod x square divide by 2 pi a, और जो इंटीग्रल है 0 to 2 pi वो बाउंड्री पे आ जाएगा. mod x dash equals to a, h phi को आई कैन राइट u x dash. डिवीजन में जो था by law of cosine you can write ds dash. तो इनडायरेक्टली मैंने डी फाई को क्या लिखूंगा ds dash by a, तो ये a वहां से आ रहा है डी फाई को. 2 पाई तो ऑलरेडी था ही वहां पे. ओके, सो डी फाई को चेंज कर दो d dash dash ds by a. So this formula for all x belongs to d. And where we write जो बाउंड्री पे था ना h लिखा था मैंने, h क्या था बाउंड्री पे वैल्यू थी h of i, उसको मैंने लिख दिया u की टर्म में, u की वैल्यू x डैश यानी कि बाउंड्री पे. So this is called geometrical representation of Poisson formula. We hardly use this, but this is also somehow Poisson. Okay, and one important consequence of this formula is that is known as mean value property. Mean value property. So let u be a harmonic function in a disk D. U be harmonic function in a disk D and continuous in its closure D bar. Then the value of u at the center of disk equals the average of u on its circumference. यानी कि जो u का वैल्यू है सेंटर पे, सेंटर मतलब 0 पे, इसी फार्मूले में फिट कर देंगे, u x को 0 फिट कर दोगे, सेंटर पे जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू एवरेज, कि सर्कल है सरकमफ्रेंस पे एवरेज निकाल लो, तो सेंटर पे वैल्यू सरकमफ्रेंस का एवरेज के इक्वल होगा. दैट वी वांट टू से.
तो प्रूफ इसी से हो जाएगा, एक लाइन में ही है. सो दैट इज ए कंसीक्वेंस ऑफ Poisson फार्मूला. So we choose coordinates with the origin 0 at the center, with origin as the center of circle, at the center of the circle. So put x equals to 0 in Poisson formula, जो अभी आपने लिखा था ज्योमेट्रिक वर्जन, in Poisson formula. So we get u at 0. ऊपर था ए स्क्र माइनस एक्स, तो ये मॉड एक्स 0 बन जाएगा. ओरिजिन पे कैलकुलेट कर रहे हो, सो ए स्क्र बाई 2 पाई ए एक्स बाउंड्री पे वैल्यू, सो यू एक्स डैश अपॉन ए स्क्र. ठीक है, एक्स माइनस एक्स डैश स्क्र. एक्स को 0 फिट कर दो और एक्स डैश इक्वल टू ए फिट कर दो ना, ये जो आपका रेडियस है. सो यू एक्स डैश बाई ए स्क्र एंड डी एक्स डैश. तो ए स्क्र विल कैंसिल आउट, सो 1 बाई okay. So thus the value of u at center is the average on circumference. एवरेज ही है ये. u की वैल्यू कंप्यूट करो बाउंड्री पे और उसको सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दो. आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे ना, एवरेज इंटीग्रल इज आल्सो एवरेज. कंटिन्यूस सेंस में जो है, कंटिन्यूस सेंस में एवरेज कैसे निकालोगे? इंटीग्रल कर दो और जो टोटल लेंथ है उसे डिवाइड कर दो. ओके, सो यू आर कंप्यूटिंग ऑन बाउंड्री, u का इंटीग्रल कर लो और जो लेंथ सर्कमफ्रेंस है 2 पाई ए से डिवाइड कर दो. यही इसमें प्रूव करना था, जो ओरिजिन पे वैल्यू है वो सर्कमफ्रेंस का जो एवरेज है. So that was Poisson formula and its consequences. And now we take few examples. Informally, this is the end of the chapter, but we need to take few examples of Laplace equation on different boundaries. So first example I am taking, so you can put more headings. So Laplace equation on wedges, annuli and exterior of the circle. Exterior of a circle. So these are three broad example of Laplace equation. Firstly, I am going to take this equation on wedge. ये एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कि इसमें दो साइड्स हैं. ठीक है, एक ये साइड है, एक ये साइड है. तो ऐसा स्ट्रक्चर ये, इसको हम वेज बोलते हैं, वेजेस. ठीक है. So you can consider this equation on different structures. ठीक है. और एनोलाई क्या होगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इनके बीच में ये आपका डोमेन है, तो इसमें आपका डोमेन ये है. एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल दिस, सो आउटसाइड द सर्कल, दैट इज योर डोमेन.
So depending on the situation, you may have some examples of this equation. So that can be wedge, that can be exterior of a circle, and that can be an annuli. So firstly, I'll take this equation on wedge, then on the exterior of a circle. So we can put appropriate boundary conditions. So I'm just saying these are just examples. So this leaves us with a lot of possibility. So if you change boundary condition, you can take Newman condition, you can take Dirichlet condition, you can take mixed condition. So even on one domain, you can take many possibility. That's why I'm saying that this is just a few examples. So first example is, let us consider Laplace equation in a wedge that is a domain 0 to a and angle beta, and equation is Laplacian of u equals to 0. Laplacian को ना कई बुक्स ये भी लिखते हैं, so that is also same. मैंने बिगनिंग में डिस्कस किया था, ये भी सेकंड. अब इसका मीनिंग क्या है? सो ग्रेडियंट डॉट ग्रेड, ग्रेडियंट आप लिखते हो ना फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, दोनों ही सिंबल यूज करते हैं. आप ये यूज करो चाहे आप ये यूज करो. ट्रायंगल है ना, एक उल्टा एक सीधा है, उल्टे में स्क्वायर है और सीधे वाले में नहीं लगाते हैं. एंड वी से दिस इज लैप्लासियन ऑफ u. Okay, so or you can write u xx plus u yy equals to 0 in D, and these are the boundary condition, and u a theta equals to h of theta. Okay, so first boundary theta is 0, ये वाली लाइन है, तो इस पे क्या है, u 0 है. सेकंड बाउंड्री u a r equals to a, ये तो ये दूसरी है बीटा पे फिक्स एंगल. ओके, थीटा बीटा है तो u यहाँ पे भी 0 है, इस बाउंड्री पे भी 0 है, बिलो थीटा इक्वल टू 0 पे भी 0 है, और r ये जो ये वाली है, ठीक है. इस पे कितना है, u h थीटा, ये रेडियस है, ये सर्कुलर टाइप है, ये सर्कुलर. ओके, सो व्हेन r इक्वल्स टू a, व्हाटएवर एंगल यू टेक, है ना, बट टोटल डोमेन आपने बीटा तक ही जाना है. सो दिस इज माय डोमेन इनसाइड, ये डोमेन है आपका सारा, ठीक है. और ये जो तीनों साइड्स हैं, ये बाउंड्री है इसका, दिस वन बिलो एंड दिस वन. सो दिस इज माय रीजन. So find solution. So we use polar coordinate. So I write u r theta equals to f of r g of theta. So we use separation of variable in polar coordinate. Okay. अभी हमने सर्कल में किया था, इक्वेशन तो सेम है आपका. सो यू विल गेट r स्क्वायर, फिट करना लैप्लास इक्वेशन में. पहले आप पोलर फॉर्म लिखोगे ना लैप्लास का, ध्यान है, जैसे हमने पिछली बार किया था. दिस वन, ये सेम लिखना है आपने. राइट u इक्वल्स टू एफ आर जी थीटा. ओके, सो देन राइट लैप्लास इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट. दिस वन, then separate
both sides. लिख लोगे ये हैं? ओके, लिख लो इसको, राइट दिस वन, uxx plus uyy equals to, this is polar form, then separate the variables. Okay, up to this point. So you will get two equations. Okay, so boundary conditions. First UR0, second FR G0 equals to 0. This will give you G0 equals to 0. And second boundary condition, when R equals to beta, so this will give you G beta equals to 0. So firstly, we will solve simple equation. So firstly, we solve OD G double dash plus lambda G equals to 0 with boundary condition homogeneous E0 equals to G beta equals to 0 equals to 0. और ये प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व किया था. So eigenvalues of this problem are eigenvalue and eigenfunctions of this problem are lambda n equals to n pi by beta वो था ना 0 to L था, L की जगह यहाँ पे बीटा है n pi by L स्क्वायर एंड जी को gn लिखना होगा आपने तो साइन n पाई थीटा बाई वहाँ n पाई x बाई L था, x की जगह थीटा और उसकी जगह बीटा एंड n इज 1 2 3 4. ये साइन वाला सोल्यूशन है, इसमें जीरो नहीं आएगा. So similarly we can find solution of R इक्वेशन. फिर आपने सॉल्व करना है R वाली इक्वेशन को. R वाली इक्वेशन है R स्क्वायर F डबल डैश प्लस R F डैश माइनस लैम्डा F इक्वल्स टू 0 which is Cauchy-Euler equation, Cauchy-Euler type equation having solution of the form. इसके solution इस form में होंगे r पावर अल्फा. आप इसमें फिट करना, अभी हमने पहले भी किया था, तो r की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस √ लैम्डा आ जाएगा. तो लैम्डा की वैल्यू फिट कर दो यहाँ पे n पाई बाई बीटा.
तो इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन है f, दैट विल बी सम कांस्टेंट a n r की पावर n पाई बाई बीटा प्लस b n r पावर माइनस n पाई बाई बीटा। जस्ट पहले में सर्कल वाले एग्जांपल में किया था हमने, वहां पे सिर्फ n ही था, यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे n पाई बाई बीटा है। अब सेम वे में सिंस जो r का नेगेटिव पावर है, सिंस r पावर माइनस n पाई बाई बीटा इज नॉट डिफाइंड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे r 0 होगा ना, सो वी डिस्कार्ड दिस टर्म। तो इसको आप डिस्कार्ड कर दो, ये तो सोल्यूशन होगा नहीं उस डोमेन के अंदर। वैसे है ये फंडामेंटल सोल्यूशन, वैसे है ये, बट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे, सो यू हैव टू डिस्कार्ड एज दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट ओरिजिन, सो यू हैव टू गेट रिड फ्रॉम दिस फंक्शन। तो फाइनली सोल्यूशन आप क्या लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, f और g को, दिस इज g, दिस इज f, मल्टीप्लाई देन सम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ तो कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, जस्ट 1 टू इन्फिनिटी। Therefore, final solution, series solution u r theta summation n equals to 1 to infinity f r g multiplied by g theta. So n equals to 1 to infinity a n r की वैल्यू क्या थी, r की पावर n पाई बाई बीटा, और g का वैल्यू है साइन n पाई थीटा बाई बीटा विद अप्रोप्रिएट कांस्टेंट a। अब इसको कैसे निकालोगे a को, यूज थर्ड कंडीशन, यूज बाउंड्री कंडीशन। जो थर्ड कंडीशन था u a थीटा इक्वल्स टू h थीटा, सो a n a पावर r को a फिट कर दो, and this is Fourier series which gives जो Fourier coefficient है a n a power n pi by beta, that will be 2 by l 2 by beta 0 to l 0 to beta, l की जगह बीटा है यहाँ पे, h थीटा साइन n pi थीटा बाई बीटा d थीटा। ठीक है, तो यहाँ से a n निकालना है, तो अब कॉफिशिएंट तो पूरा था, ये कॉफिशिएंट आप पूरा लिखोगे ना, a n के साथ ये भी था, तो पूरे कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या आती है, h का इनर प्रोडक्ट साइन के साथ, इसके साथ। तो यहाँ से a n निकालो, a n विल बी 2 बाई बीटा a पावर n पाई बाई बीटा, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर सेम। So u r theta. So this is my solution where a n is this. Okay, so this is my final solution on given domain, and coefficient is given by this formula a n. आसान है, कुछ बोलो ये। फॉलो कर रहे हो? नहीं? So this is first example. अब क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने हैं तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और यू कैन गो फ्रॉम द बिगनिंग एन पाई ये बीटा है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रैक्टिकली आपको h दे रखा होगा, सो जस्ट यू हैव टू डू इंटीग्रल। ठीक है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, मान लो यही क्वेश्चन आ गया आपको सेम,
इक्वेशन तो सेम है, ये तो जीरो कंडीशन है। या एच की जगह उसने फंक्शन दे दिया, मान उसने कह दिया कि फंक्शन आपका 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, मोर स्पेसिफिक एग्जांपल। तो यहाँ पे आप क्या करो, बाकी सब कुछ सेम चलेगा, लास्ट में यहाँ पे इंटीग्रल कर देना है आपने, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा फिट करके जस्ट डू इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है, साइन स्क्वायर बनेगा जो भी आप चेंज करके उसको, देन डू इंटीग्रेशन practically. So and second example, so we take Laplace equation, अब ये डोमेन है आपका, u इक्वल्स टू जी थीटा, ऐसे दोनों कोऑर्डिनेट मिक्स हैं, कार्टेशियन भी दे रखा है और पोलर भी दे रखा है। अगर सिर्फ पोलर में लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू ए कह दो, ठीक है, u इक्वल्स टू एच थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सो व्हाट वुड बी योर डोमेन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, तो ये बी वाला सर्कल बड़ा है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, रीजन कौन सा बना ये कह रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो ये इनसाइड वाला सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ग्रेटर देन होगा तो उसके बाद वाला, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, तो ये बी है टोटल, ये बी है और ये आपका ए है, ओके। सो दिस इज इंटीरियर ऑफ टू सर्कल, इसको हम एनुलस भी बोलते हैं, सो रीजन इज एनुलस, दिस वन एनुलाई, ओके, इंटीरियर ऑफ टू सर्कल्स। और क्वेश्चन है फाइंड द सेपरेटेड सॉल्यूशन, फाइंड द सेपरेटेड सॉल्यूशन, ये शॉर्ट टर्म यूज करते हैं, इसका मीनिंग है फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। करोगे इसको, आप करना ट्राई, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ फाइनल, पोलर फॉर्म लिखना, जो हमने फर्स्ट मोड जनरल केस किया था, एक जीरो के लिए सॉल्यूशन आएगा, सी जीरो प्लस डी जीरो लॉग आर, अगर आपको ध्यान हो पीछे, तो ये सारे हमने निकाले हुए हैं पहले। फिर एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए आर वाले में दोनों आएंगे, आर पावर एन और आर पावर माइनस एन, पूरा लिख रहा हूँ एक बार में, कॉस एन थीटा सी एन और ए एन आर पावर एन बी एन आर पावर माइनस एन साइन एन थीटा, ये होगा फाइनल सॉल्यूशन। सो बाउंड्री कंडीशन फॉर आइगन वैल्यू प्रॉब्लम इन जो थीटा वेरिएबल है, दैट इज सेम एज अ सर्कल, सेम सर्कल का हमने एग्जांपल किया था, द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फॉर थीटा इज सेम एज सर्कल, सो कॉस एंड साइन विल कम, तो सर्कल का एग्जांपल किया था, जस्ट सेम।
सर्कल का एग्जांपल किया था ना, बाउंड्री कंडीशन हमने कहा था सर्कल पे क्या होगा, थीटा प्लस 2 पाई जी थीटा प्लस 2 पाई इक्वल्स टू जी थीटा, ये कंडीशन यूज किया था हमने, आपको ध्यान। सो दिस विल लीड टू कॉस एंड साइन। और जो आर वाली प्रॉब्लम है, जो आर प्रॉब्लम है उसमें आइगन वैल्यू जो मिलेंगी दे आर एन स्क्वायर, और फिर उससे कंपोनेंट आएंगे लॉग आर, आर पावर एन, आर पावर माइनस एन, ठीक है, ये फंक्शन आएंगे। तो हमने पीछे हमने एग्जांपल लिए थे, हमने इसको डिस्कार्ड किया था आर पावर माइनस एन, क्योंकि ओरिजिन था वहां पे ना। तो अब इनको डिस्कार्ड की जरूरत है, इसको आर पावर माइनस एन को इस डोमेन के अंदर। अब तो जीरो नहीं है ना, सो ऑल आर अलाउड, सो ऑल आर अलाउड। पहले तो जीरो पे प्रॉब्लम था ना, लॉग जीरो इज नॉट डिफाइंड, आर पावर माइनस एन जीरो, 1 बाई बन रहा था ना जीरो। बट जो जनरल प्रूफ था उसमें हमने डिस्कार्ड किया था, यहाँ पे हमने डिस्कार्ड नहीं करना, सो ऑल फंक्शंस आर अलाउड। एंड फाइनली you need to use boundary conditions. So coefficients are determined by boundary conditions. The coefficients are determined using boundary conditions. तो बाउंड्री कंडीशन आपकी है यू ए थीटा, जो दे रखा है उसने, सी जीरो प्लस डी जीरो लॉग आर, लॉग ए, आर को ए फिट कर दो, सी एन ए पावर एन, डी एन ए पावर माइनस एन, कॉस एन थीटा प्लस, ये सम चलेगा दोनों के साथ ही है ये सम, चाहे सेपरेट लिख लो, बट सम विल बी बोथ। फिर लिखेंगे हम ए एन आर पावर एन, बी एन आर पावर माइनस एन साइन एन थीटा, सम, ये सम सम यहाँ क्लोज होगा, साइन एन थीटा के बाद। So just write boundary condition u a theta, u a theta उसने दे रखा दैट इज जी थीटा, और सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो है सिमिलरली u b थीटा इक्वल्स टू एच थीटा, या सीधा लिख देते हैं शॉर्ट में, सिमिलरली for boundary condition at r equals to boundary condition on r equals to b, similar boundary condition. So here we will get Fourier series, and the Fourier coefficient can be determined. बाकी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, बाकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल जब लेंगे तो वी विल सॉर्ट आउट दिस थिंग्स, ठीक है। ये वैसे बहुत लंबा आर्टिकल बनेगा ये, इफ यू राइट एवरीथिंग। सो जस्ट जो हमने पहले केस करते रहे हैं, यू कैन कंप्यूट फूरियर कोएफिशिएंट्स। फूरियर सीरीज कैसे बनेगी, ये देखो ना, कॉस के साथ ये वाले कोएफिशिएंट, तो
एक इक्वेशन ये बनेगी C0 प्लस D0 log A इक्वल्स टू जो भी आपका कॉफिशिएंट आएगा A0, फिर यहाँ पे आएगा CN AN प्लस DN A पावर माइनस n इक्वल्स टू समथिंग, फिर यहाँ से आएगा ए पे फिर बी पे भी CN BN प्लस DN B माइनस n, तो एक कंडीशन इस टाइप का बनेगा CN AN प्लस DN A माइनस n इक्वल्स टू जो भी कॉफिशिएंट आएगा, और बी पे लिखोगे इसको B पावर n DN B पावर माइनस n इक्वल टू समथिंग। तो दो कंडीशन यहाँ से बनेगा व्हेन यू एवेल्यूएट दिस एट A एंड B, सिमिलरली दो यहाँ से बनेगा और इनके लिए भी दो बनेगा। अब मैथ में सिंपल प्रिंसिपल है, यू हैव टू इक्वेशन टू अननोन, है ना, CN DN में दो इक्वेशन बनेगा, वहां से फाइंड CN एंड DN निकाल सकते हो, दो इक्वेशन से दो अननोन। सेम यहाँ दो इक्वेशन बनेगा AN और BN से, फाइंड AN एंड BN। सेम यहाँ दो इक्वेशन बनेगा C0 D0 से, फाइंड दो C0 एंड D0। और ये इक्वेशन बनेगी कैसे? फूरियर कोएफिशिएंट से, and in that way you can determine the unique solution by solving the boundary value problem. And other type of boundary condition, mixed type of boundary condition, you can solve in the same way. But मेन चीज आपने शुरू यहाँ से करना है क्लियरली, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, whatever boundary condition you have, write the equation, assume solution in separated form, u equals to, इस फॉर्म में अज्यूम करो, देन राइट पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे यहाँ तक जाना है आपने इन एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। देन ट्राई टू सॉल्व, ये सेकंड वाला सिंपल है, सेकंड वाले को सॉल्व करना है, जो भी कंडीशन हो, फाइंड दिस जी, ओके। आपको लैम्डा मिल जाएगा, जीरो मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मिलेगा, तो जो लैम्डा आपने फिक्स किया उस लैम्डा के लिए आर वाला इक्वेशन फॉलो करो, और ये कॉशी यूलर ही बनेगा, इसके सॉल्यूशन इस फॉर्म में होंगे आर पावर अल्फा, ओके। तो यहाँ पे जो पहला सॉल्यूशन लिखा है मैंने वो लैम्डा जीरो के लिए है, सी प्लस डी लॉग आर, हमारे वहां भी आ रहा था ना सी प्लस डी लॉग आर, जीरो आइगन वैल्यू के लिए। और दूसरा सॉल्यूशन आप लिखोगे अदर वैल्यू के लिए, जैसे लैम्डा यहाँ पे एन स्क्वायर था, दो सॉल्यूशन लिख लो, तो आर पावर एन और आर पावर माइनस एन आ रहे हैं, ये सब में सेम है, सेम प्रोसीजर है। देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने फिर यहाँ पे आर पावर माइनस एन को डिस्कार्ड किया था, क्योंकि अब आपके पास आर इक्वल्स टू जीरो भी है। बट इन एनालस केसेस, in this case you don't have r equals to 0 in domain, so we will take this, okay, so you don't discard। and then finally coefficients are given by Fourier series, ये यहाँ से आपने a n b n निकाल लेना है, okay। So this is the working procedure in every example। I advise you to maybe you should practice this Poisson formula beginning में, जो है इसको proper way में आप लिखिए, समझिए इसको, and all the problems can be solved in similar fashion। बाकी सब कुछ सेम है ना, इक्वेशन सेम है, बट डिफरेंट क्या आ रहा है यहाँ पे, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। एक एग्जांपल नेक्स्ट और है दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, सो दैट इज आउटसाइड ऑफ ए सर्कल। So what will be the solution outside the circle? And we will also take some examples in next class। Any query? Okay, so we will continue in next class।